یہ پڑھی کہ اس وقت بے شمار کوڈ رائج ہیں. ویسے تو ہر زبان بجائے خود ایک کوڈ ہے، پھر ہر زبان کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کوڈ کے کچھ جانتے ہوں. شارٹ ہینڈ بھی کوڈ ہے جس کے ذریعے سے لمبی چوڑی اور سیدھی سادھی تحریر چند ٹیڑھی لکیروں میں سما جاتی ہے. خفیہ پولیس والوں کا اپنا کوڈ ہوتا ہے. مثلاً اگر انہیں یہ پیغام بھیجنا ہو کہ فلاں شہر میں فساد ہونے کا خطرہ ہے تو وہ کوڈ میں تار بھیج دیں گے کہ جے بہادری کی لڑکی پیدا ہونے والی ہے. ریڈیو اور فلموں والوں کا بھی کوڈ ہوتا ہے. مثلاً فلم والے ریل کے ایک ایکسیڈنٹ، طوفان، طغیانی جہاز کی اڑان، جلسے جلوسوں کے سین فلما کر تیار رکھتے ہیں. پروڈیوسر اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیتا ہے بھائی ذرا دیکھنا وہ 3 نمبر کا سین 3 سیکنڈ کے لیے اور 15 نمبر کا سین 1 منٹ کے لیے لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک اندھیری رات میں طوفان کا سین چاہیے جس میں ہیرو پہاڑ کی چوٹی سے سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے. اب وہ سین ہر ہیرو کو، چاہے وہ راجیش کھنہ ہو یا ناگیشور راؤ، فٹ ہو جائے گا، کیونکہ اصلی چھلانگ لگانے والا تو بیچارہ سٹنٹ مین ہے جس کو اس سین کے لیے صرف 50 روپے نقد دیے جاتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ کوڈ سسٹم کو ابھی اور بھی بڑے پیمانے پر ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے زندگی آسان ہو سکتی ہے اور روزمرہ کے کئی فضول قسم کے جملے اور تکلفات ترک کیے جا سکتے ہیں. مثلاً جب بھی آپ کسی دوست سے ملتے ہیں ہمیشہ یہی سوال پوچھتے ہیں تو بھائی کیا حال ہے. اس کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے. پھر وہ آپ سے وہی سوال پوچھتا ہے اور آپ بھی وہی جواب دیتے ہیں. پھر کیونکہ اور کوئی بات کہنی نہیں ہوتی اس لیے تھوڑی دیر کے بعد آپ ذرا اوب کر پوچھتے ہیں اچھا اور کیا حال ہے. اس کا جواب ہوتا ہے اچھا اور بھی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ گھبرائیے مت اور خواہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیے. یہ رسمی گفتگو صرف ہندوستان میں ہی نہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہے. ہم نے بیشتر ممالک میں دیکھا ہے کہ دستوری گفتگو ایسے ہی ہوتی ہے. کچھ عرصہ ہوا ہمیں چند عرب ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ہمیشہ ہر ملاقات پر گفتگو ایسے ہوتی ہے. زید صبح خیر. بکر صبح خیر. زید کیا حال ہے؟ بکر ٹھیک ہے شکر ہے خدا کا. تمہارا کیا حال ہے؟ زید ٹھیک ہے شکر ہے خدا کا. اس سے زیادہ عربی ہم سیکھ نہیں پائے، شکر ہے خدا کا. انگریزی اور امریکن لوگ تو اور بھی کمال کرتے ہیں، سوال کا جواب سوال سے دیتے ہیں. مثلاً جب وہ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو گفتگو یوں شروع ہوتی ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. اس کا جواب ہوتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ ایک شخص اصرار کرتا ہے کہ پہلے تم اپنا طریقہ کار بتاؤ تو پھر میں بتاؤں گا، اور ہمیں یہ ڈر رہتا تھا کہ ابھی ان کی لڑائی ہوئی یا لکھنؤ کے نوابوں کی طرح پہلے آپ میں گاڑی چھوٹ جائے گی. لیکن صدیاں بیت گئیں، آج تک نہ ٹام نے اور نہ جم نے اپنا حال بتایا اور ان کی نسلیں ابھی تک ایک دوسرے کو قریدی جا رہی ہیں. اب اگر ہم آپ کا کیا حال ہے کو کوڈ نمبر 1 اور میرا حال ٹھیک ہے شکریہ کو کوڈ نمبر 2 دے دیں تو ملاقات کے وقت گفتگو ایسے ہو سکتی ہے ٹام 1 جم 2-1 ٹام 2. ہمیں سینکڑوں جلسوں، محفلوں اور مشاعروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور کئی حیثیتوں سے ایسے محفلوں میں جانے کا موقع ملا ہے. ہم نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے. ہر جلسے کے لیے کچھ کیریکٹر ضروری ہیں. سب سے پہلے کنوینر، جو سارے فساد کی جڑ ہوتا ہے. اس کے کئی اور نام بھی ہوتے ہیں جیسے آرگنائزر یا سیکرٹری وغیرہ. نام کچھ ہو، اس جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دوسروں کا چنا ہوا یا خود ساختہ. قسم چاہے کوئی بھی ہو، خصلت ایک ہی ہوتی ہے. ان صاحب میں خود نمائشی کا جذبہ مدرجہ عدم موجود ہوتا ہے. انگریزی میں ایسے شخص کو اسکینڈل مانگر کہا جا سکتا ہے. جلسے کے لیے
जिस दूसरे कैरेक्टर की ज़रूरत होती है उसको प्रेसिडेंट या चेयरमैन या साहिब सदर कहा जाता है। अगले ज़माने में सिर्फ साहिब सदर का होना काफ़ी था, लेकिन अब आबादी बढ़ जाने के वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई है, इसलिए जलसों के लिए एक और पोस्ट सैंक्शन की गई है। इस पोस्ट को चीफ गेस्ट या मेहमान ख़ुसूसी का नाम दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि फ़ी जलसा कम से कम 2 वीआईपीओं को निपटाया जा सके। हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि साहिब सदर और मेहमान ख़ुसूसी में कौन सा रुतबा ज़्यादा अहम होता है, और यही इस बात की खूबी भी है कि ख़ुद दोनों को मुगालता रहता है कि एक दूसरे से ज़्यादा अहम है, और इस तरह एक तलवार से 2 शिकार हो जाते हैं। चलिए नमूने के तौर पर आपको एक जलसे में ले जाएं। महफिल मौसीकी की है। जनाब सदर और मेहमान ख़ुसूसी के नामों का ढिंढोरा पिट चुका है। इश्तहारों में लोगों से वक्त पर आने की दरख्वास्त की गई थी। वक्त कभी का हो चुका है। आर्टिस्ट लोग तैयार बैठे हैं। हाल खचाखच भरा हुआ है। मुंतज़मीन बेताबी से साहिब सदर का इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा खुदा करके वो आए, लेकिन 1 घंटा लेट। यहाँ आने से पहले वो किसी मजहबी तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी थे, वहाँ देर हो गई। मेहमान ख़ुसूसी उनके आने के बाद आए, क्योंकि रिवाजन जो शख्स ज़्यादा अहम होता है वो ज़्यादा देर से आता है। अब महफिल का आगाज़ होता है। कन्वीनर साहिब सदर की गुलपोशी करते हैं। हाज़रीन तालियां बजाते हैं। कन्वीनर साहब मेहमान ख़ुसूसी को हार पहनाते हैं। हाज़रीन फिर तालियां बजाते हैं। फिर एक और साहब कन्वीनर साहब की गुलपोशी करते हैं। इस बार हाज़रीन कम तालियां बजाते हैं, लेकिन साहिब सदर और मेहमान ख़ुसूसी खूब ज़ोर से तालियां बजाते हैं। फिर मेहमान ख़ुसूसी आर्टिस्टों की गुलपोशी करते हैं। अब सब लोग मिलकर तालियां बजाते हैं। फिर कन्वीनर साहब थोड़ा खांस कर अपना गला साफ करते हैं और साहिब सदर की तफसीली सवाने हयात पढ़ना शुरू करते हैं। वो पैदा कब और क्यों हुए, उन्होंने तालीम क्यों नहीं पाई, वो पैदा कब और क्यों हुए, उन्होंने तालीम क्यों नहीं पाई, और कौम या रियासत या महल्ला या अपनी गली के तईं बेलॉस और अपने कुनबे के तईं लॉस खिदमात का जायज़ा लिया जाता है। ये तमाम मालूमात साहिब सदर ने ख़ुद नहायत मुबालगा आमेज़ी से लिख कर कन्वीनर साहब को पहले से दी हुई होती है, लेकिन इस वक्त इनको सुनकर वो कुछ ऐसे झेंपते हैं गोया कोई नजूमी उनके बारे में कुछ राज की बातें बता रहा हो। बिलाखिर कन्वीनर जल्दी से एक बार फिर साहिब सदर की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद अपनी सोने की घड़ी से कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आने की तकलीफ गवारा की। इसके बाद सदर साहब से अंजमन और आर्टिस्टों के बारे में चंद अल्फाज कहने की गुजारिश की जाती है। चंद अल्फाज के मानी हिंदुस्तान में लंबी तकरीर के होते हैं। पहले तो सदर साहब कुछ अल्फाज में सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके बाकी के चंद अल्फाज 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। पहले हिस्से में वो सच बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो एक हकीर और अदना किस्म का शख्स हूँ जो हरगिज़ इस इज़्ज़त का मुस्तहिक नहीं था जो आप लोगों ने मुझे बख्शी। वो ये भी एतराफ़ करते हैं कि मेरे मुतालिक जो कुछ भी आपको बताया गया है वो मुबालगा आमेज़ी है। चूँकि हाज़रीन को सच सुनने की आदत नहीं होती, इसलिए वो सच को भी झूठ मानकर इसे सदर साहब की कसर नफसी समझते हैं। इस मुगालते का फ़ायदा उठाकर अब सदर साहब अपने चंद अल्फाज का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं।
जिस में वो सरासर झूठ बोलते हैं। मैं यहाँ तकरीर देने तो नहीं आया था, वो तो मुझे अभी अभी पता चला कि मुझे तकरीर भी करनी। मेरा यहाँ आने का मुद्दा तो ये था कि मैं मौसीकी और संगीत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँ। संगीत और आर्ट से मुझे बचपन से ही लगाव है। ये शौक़ मुझ में उस वक्त पैदा हुआ जब मैं दीवारों पर फिल्मी पोस्टर लगाकर अपना पेट पाला करता था। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मैं यहाँ तकरीर देने नहीं आया था, बल्कि महफिल का लुत्फ़ उठाने आया था। अब मैं दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बजाय प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। इससे पहले मैं मुंतज़मीन का, कलाकारों का और हाज़रीन का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने नोट किया होगा कि सदर साहब का पहला शुक्रिया सतही था, दूसरा तहे दिल से था। वो इसलिए कि आम तौर पर साहिब सदर काफ़ी मोटे और फफस किस्म के लोग होते हैं और उनको अपने दिल की तह तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन अभी प्रोग्राम का आगाज़ कहाँ, आप मेहमान ख़ुसूसी को तो भूल ही गए। साहिब सदर से निपट लेने के बाद मेहमान ख़ुसूसी की बारी आती है और फिर उनके ताल्लुक़ से पूरी कार्रवाई लफ्ज़ पे लफ्ज़ नहीं तो मुहावरा ब मुहावरा और दौर बदौर दोहराई जाती है। इस कार्रवाई से बोर होकर बेचारा या बेचारी आर्टिस्ट सो जाता या सो जाती है। क्योंकि वो स्टेज पर इकट्ठे नहीं सो सकते, इसलिए बारी बारी सोते हैं। हाज़रीन उन्हें जगाने के लिए तालियां बजाते हैं, तो साहिब सदर अपनी तारीफ़ में समझते हैं। उसके बाद असली महफ़िल का आगाज़ होता है, यानी आर्टिस्टों के जागने का और सदर और मेहमान ख़ुसूसी के सोने का वक्त शुरू होता है। हमारे जलसों की रस्मी कार्रवाइयों और घिसी पिटी इस्तिलाहों की एक ख़ास खूबी ये है कि वो किसी भी मौके पर बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल की जा सकती हैं। गोया ये एक जामा है जो हर किसी को ज़ेब देता है। ये रस्मी और खोखले तकल्लुफ़ात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इतना अहम जुज़ बन गए हैं कि बेशतर अहम रस्मों के जंगल में असली ज़ब्त खो देते हैं। ये सब तकल्लुफ़ और रख रखाव तज़िया औकात है। सबको मालूम है कि साहिब सदर मेहमान ख़ुसूसी और मुंतज़मीन जलसा हाज़रीन के साथ खेल खेल रहे हैं। इसलिए हमने तकरीबन 500 जलसों का मुताला करके पिछले साल ये तजवीज़ पेश की थी कि तमाम खैर मक़दमी तकारीर, अज़हार तशक्कुर और दूसरे तकल्लुफ़ाती जुमलों और स्टैंडर्ड मुहावरों को कोड नंबर दे दिया जाए और अपनी तकरीरों के इन रस्मी हिस्सों को मुकर्ररीन कोड में पढ़ें। सिर्फ असली मवाद को पूरे तौर पर पढ़ें। उर्दू में हरूफ अबजद का कोड तो मौजूद है, वैसा कोड यहाँ भी लगाया जा सकता है। हर जलसे में इस कोड की और इसकी चाबी की कापियाँ तमाम हाज़रीन में पहले से तकसीम की जा सकती हैं। इस कोड में साहिब सदर के लिए नंबर 1, मेहमान ख़ुसूसी के लिए नंबर 2 और हाज़रीन के लिए 0 इस्तेमाल किया जाएगा। हाज़रीन के लिए 0 का हिस्सा ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि हाज़रीन बजाय ख़ुद 0 होते हैं। उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती, लेकिन वो जिस हिस्से के साथ लग जाएं उसकी कीमत में इजाफ़ा करते हैं। इस तरह साहिब सदर की कीमत हाज़रीन की मौजूदगी से ही बढ़ती है। अगर ये कोड मंजूर कर लिया जाए तो नमूने के तौर पर खैर मक़दमी तकरीर कुछ ऐसे होगी: 1 2 0 702 4/5 2 ज़रा 3 4 25 75 17 22। शुक्रिया। इसका हल ये होगा, मुअज़्ज़ज़ साहिब सदर, मेहमान ख़ुसूसी और हाज़रीन, आज बहुत मुबारक दिन है कि हम सब लोग यहाँ जमा हुए। आप लोग जानते हैं कि साहिब सदर यहाँ की कल्चरल ज़िंदगी के रूह रवां हैं और इस जलसे की सदारत के लिए उनसे बेहतर शख्स का इंतखाब मुश्किल था। उनकी खिदमात से भी आप बखूबी वाक़िफ़ हैं।
मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गोलागू मसरूफियत के बावजूद यहाँ आने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला वगैरह वगैरह। मेहमान खसूसी के ताल्लुक़ से 304 7/9 यानी जो कुछ साहिब सदर के बारे में कहा गया है वो हमारे मेहमान खसूसी पर भी लागू होता है। इसी तरह जनाब सदर और मेहमान खसूसी भी एक आध मिनट में कोर्ट के ज़रिए अपने तकल्लुफ़ात का इजहार कर सकते हैं। हमने बड़े फ़ख्र से ये तजवीज़ चंद अहम इदारों, लीडरों और अखबार नवीसों के सामने रखी। ये फ़ैसला हुआ कि इस तजवीज़ पर एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में गौर किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में हमें दावत दी गई। वहाँ हमने अपनी तजवीज़ की तफसीली तौर पर वजाहत की। इस पर बहुत बहस हुई। उसकी शदीद तरीन मुखालफत लीडरों और जनता की तरफ से हुई और बिलाखिर तजवीज़ को भारी अक्सरियत से रद्द कर दिया गया। इसकी दो अहम वजूहात बताई गई। एक तो ये कि अगर तकरीरों में से रस्मी और रिवाजी लवाजमात और तकल्लुफ़ात को निकाल दिया जाए तो फिर भाषण देने वालों को अपनी तकरीरों में ठोस मवाद डालना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें गौर व फिक्र करना पड़ेगा, जिससे उनके दिमागों पर बोझ पड़ने का अंदेशा है, जो एक ख़तरनाक बात होगी। इसी तरह हाज़रीन को भी खामखा सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान में आज हर चीज़ पर टैक्स लग चुका है, सिर्फ इंसानी दिमाग पर ही टैक्स नहीं लगा। ये तजवीज़ दिमाग पर टैक्स लगाने के बराबर है। जनता हरगिज़ ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं करेगी जिससे उसको अपना दिमाग कुरेदना पड़े, जिसको उसने सदियों से महफूज रखा हुआ है। दूसरा एतराज़ ये था कि इस तजवीज़ पर अमल करने से लोगों का बहुत सा वक्त बच जाएगा। फिर ये सवाल पैदा होगा कि ऐसे बचाए हुए वक्त में लोग क्या करेंगे। हमें ये वार्निंग दी गई कि हमारा मुल्क इस वक्त एक नहायत नाजुक मरहले से गुज़र रहा है। इस वक्त हमारे सामने बेशुमार मसले हैं। ऐसे दौर में हमारा ये फ़र्ज़ है, एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हम मौजूदा मसलों को हल करें, ना कि नए मसले पैदा करने की कोशिश करें। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये तजवीज़ शरअंगेज़ है और इससे अमन में खलल का ख़तरा है। हमने इस अपील पर गौर किया और ये दलीलें वाकई हमें ठोस लगी, इतनी ठोस कि ऐसी बेवक्त तजवीज़ रखने पर हमने इंतहाई नदामत का इजहार किया और इसे वापस ले लिया। साहिबान, अब आप भी इस तजवीज़ को भूल जाइए। शुक्रिया।